Hello students, in part 3 of trigonometric identities, I will discuss 5 more important questions. So let us start with question number 11. 10 questions I have discussed in the 2 parts of the trigonometric identities. Question number 11, 1 plus sin theta minus cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Prove that. In this trigonometric identity, you observe that the left hand side is complicated, and so we will consider the left hand side of this trigonometric identity, and from the left hand side we will bring the right hand side. So let us write the left hand side of this trigonometric identity. LHS is equal to 1 plus sin theta minus cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta whole square. As you all know that a upon b square can be written as a square upon b square. So this is equal to 1 plus sin theta minus cos theta whole square upon 1 plus sin theta plus cos theta whole square. Now, in the numerator and denominator, you find the form is a plus b plus c whole square, and you all know a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So using that algebraic identity, if we use that algebraic identity, then this can be written as 1 square plus sin theta square plus minus cos theta square plus 2ab, that is 2 into 1 into sin theta, plus 2bc, that is 2 into sin theta into minus cos theta, plus 2ca plus 2 into 1 into minus cos theta upon again using the same identity in the denominator, a plus b plus c whole square you know is equal to a square. We know that a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So again solving the denominator by using the same identity, 1 square plus sin theta square plus cos theta square plus 2ab, that is 2 into 1 into sin theta, 2 into 1 into sin theta plus 2bc, that is 2 into sin theta into cos theta plus 2 into sin theta into cos theta plus 2ca, that is 2 into cos theta into 1. So this is equal to 1 plus sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta plus minus 2 sin theta cos theta
minus 2 sin theta cos theta plus minus 2 cos theta upon one plus sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta plus 2 sin theta cos theta and plus 2 cos theta. Now sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So this is equal to 1 plus 1 plus 2 sin theta minus 2 sin theta cos theta minus 2 cos theta upon 1 plus again sin square theta plus cos square theta is 1 plus 1 plus 2 sin theta plus 2 sin theta cos theta plus 2 cos theta. Now 1 plus 1 is 2, so 2 plus 2 sin theta minus 2 sin theta cos theta and minus 2 cos theta upon 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 sin theta plus 2 sin theta cos theta plus 2 cos theta. Now 2 plus 2 sin theta into 1 minus cos theta is common in these two terms, so 2 sin theta plus 2 upon in the denominator 2 plus 2 sin theta, that is we can write 1 into 2 plus 2 sin theta plus cos theta is common in the last two terms, 2 plus 2 sin theta. Now 2 plus 2 sin theta is common in the numerator, so we have 1 minus cos theta, and 2 plus 2 sin theta in the denominator is also common. Then 1 from the first term and then plus cos theta. Now this 2 plus 2 sin theta, 2 plus 2 sin theta cancelled, so this is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, which is the right hand side. Therefore we can say the LHS is equal to, therefore LHS of this question is equal to RHS, hence the trigonometric identity is proved. Next question, question number 12. Prove that tan cube theta upon 1 plus tan square theta plus cot cube theta upon 1 plus cot square theta is equal to sec theta cosec theta minus 2 sin theta cos theta.
from the question it is clear that the left hand side of this question can be simplified very easily. So we will consider the LHS. So let us consider left hand side of this question. Left hand side is tan cube theta upon 1 plus tan square theta plus cot cube theta upon 1 plus cot square theta. So whatever the angle is given in the question, if theta is given, you will solve it by taking theta. Some students, they tend to change the angle, or they don't write the angle at all. So it is very important to write the angle, and whatever the alphabet is given in the identity, that must be used. और अब देखिए, अब आपको क्या करना है इसमें कि from the right hand side you observe that the result should be in terms of cos and sin, which can be written in the form of sec and cosec. then तो पहले हम देखिए इसमें सॉल्व करेंगे tan क्यूब थीटा अपॉन आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यू नो इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा upon you all know 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Now अब हम इसे चेंज करेंगे साइन और कॉस में. उससे पहले देखिए, दिस इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा और 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा into 1 we can write, and 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, because 1 upon sec theta is equal to cos theta, so you can write 1 upon sec square theta is equal to cos square theta. So into cos square theta plus cot cube theta into 1 upon cosec square theta is equal to sin square theta. Now we need to change this tan and cot in terms of sin and cos. तो आप यहाँ लिखेंगे tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा. बिकॉज क्यूब इज देयर तो यहाँ आप क्यूब लिखेंगे, अगर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे आप, प्लस कॉट क्यूब थीटा. कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. क्यूब इज देयर तो आप दोनों क्यूब लगाएंगे इसमें, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा into sin square theta. Now this cos square theta, two powers are cancelled here, cos theta times cancelled, sin square theta, sin cube theta, sin theta times cancelled. So we are left with now sin cube theta upon cos theta plus cos cube theta upon sin theta. Now take the LCM in the denominator में LCM लेंगे. So this is equal to sin theta into cos theta. और जब आप डिवाइड करेंगे cos theta से sin theta cos theta को, cos theta get cancelled, sin theta into sin cube theta is sin 4 theta plus sin theta cancelled, cos raised to the power 4 theta, cos 4 theta. Now this sin 4 theta plus cos 4 theta upon sin theta cos theta. अब इसको फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना है. तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए sin 4 थीटा को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इट्स स्क्वायर, 2 into 2 is 4 पावर्स प्लस cos स्क्वायर थीटा. और अगर इसको आपको होल स्क्वायर बनाना है तो आपको प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर, तो आप प्लस 2ab करेंगे और माइनस 2ab करेंगे. 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. क्यों हमने ऐसा किया है? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज देयर, तो प्लस 2ab शुड बी देयर, तो हमने प्लस 2ab एंड माइनस 2ab अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा.
Now this is a square plus b square plus 2ab form, which can be written as the square sin square theta plus cos square theta whole square, because a square plus b square plus 2ab is equal to a plus b whole square. You all know this identity. ये सभी बच्चों को पता है कि a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab minus 2 sin square theta cos square theta upon sin theta cos theta. स्टूडेंट्स, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सब आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 स्क्वायर इज 1, सो 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और आपको पता है कि 1 स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप करेंगे इसको सेपरेट, तो अगर हम इसे सेपरेट करते हैं तो देखिए a माइनस बी अपॉन सी, दैट इज a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, अलग अलग सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा cos square theta upon sin theta cos theta. Now sin theta, sin square theta, sin theta times cancelled, cos square theta cos theta times cancelled, एक पावर इनकी कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं इसे 1 इंटू 1 और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस सेक थीटा minus here we have minus 2 sin theta cos theta. So students, now you have got the right hand side which was required, so therefore you can say here the left hand side is equal to the right hand side. तो इस तरह से ये आपकी क्वेश्चन नंबर 12 में ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 13 है पार्ट 3 का। मैं अब देखिए प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉस ए। तो सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। LHS इज 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और देखिए इसकी राइट हैंड साइड में सेक टेन कॉट कॉस और इधर ये सेक ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए कोसेक ए अपॉन सेक ए, तो सेक ए इंटू टेन ए, सेक ए इंटू टेन ए आपका आ रहा है राइट हैंड साइड में। तो देखिए हम सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन राइट हैंड साइड का कौन सा पार्ट पहले आ सकता है। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू साइन ए, दैट इज साइन ए, देन 1 माइनस कॉस ए। अब आप कॉट ए का मल्टीप्लाई, साइन ए का मल्टीप्लाई हो हम 1 का मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो अब ये देखिए कॉट ए इंटू साइन ए, देन माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, प्लस टेन ए इंटू साइन ए, माइनस टेन ए इंटू कॉस ए।
तो सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, पहले 1 से किया, फिर आपने cot A से मल्टीप्लाई किया, फिर tan A से मल्टीप्लाई किया है। और ये आप राइट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज अप टू यू। अब देखिए आगे से सिंप्लीफाई करते हैं, sin A माइनस cos A, यहाँ कोई भी चेंज नहीं कर सकते आप। यहाँ cot A को आप लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A इंटू sin A माइनस cot A इंटू cos A, cot A इंटू cos A हमारे रिजल्ट में आ रहा है, तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं, प्लस tan A इंटू sin A, रिजल्ट में है आपके tan A इंटू sin A इज नॉट देयर, तो tan A इंटू sin A माइनस tan A is sin A अपॉन cos A इंटू cos A। आई थिंक यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड में होना चाहिए tan A इंटू sin A शुड बी हियर। तो tan A sin A आपका यहाँ ये आ चुका है, और cot A इंटू cos A, cot A इंटू cos A भी आपने इंटैक्ट रखा हुआ है, ये दोनों रिजल्ट में आ रहे हैं, तो इनको हम इंटैक्ट रखेंगे। दिस इज इक्वल टू sin A माइनस cos A प्लस दिस sin A एंड sin A वन टाइम कैंसिल्ड, cos A वन टाइम कैंसिल्ड, सो प्लस cos A माइनस cot A इंटू cos A प्लस tan A इंटू sin A। So cos A and cos A is cancelled here, and sin A is also remaining, minus sin A. This sin A and sin A is also cancelled. So we are left with tan A into sin A minus cot A into cos A। तो ये हमारी ये साइड आ चुकी है, राइट हैंड की जो सेकंड वाली साइड है वो आ चुकी है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप ये ही साइड लेके आएँ, आप पहले इस साइड को भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारी RHS नंबर 2 आ चुकी है, दिस इज राइट हैंड साइड नंबर 1, दिस इज राइट हैंड साइड नंबर 2। तो ये हमारी राइट हैंड साइड नंबर 2 आ चुकी है, दिस इज LHS, ये आपकी LHS है, ये RHS नंबर 1 है, और ये आपकी RHS नंबर 2 भी कैन से, ठीक है। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करके ये RHS 1 ला सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसको लेके आना। तो आप tan A, तो tan दिस इज इक्वल टू tan A को आप लिखेंगे tan A, दिस साइड लेट अस कंसीडर tan A sin A माइनस cot A cos A, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो sin A अपॉन cos A इंटू sin A माइनस cos A अपॉन sin A इंटू cos A। दिस sin A इंटू sin A इज इक्वल टू sin स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस cos A इंटू cos A इज अगेन cos स्क्वायर A अपॉन S sin A। अब देखिए आपको किस फॉर्म में लेके आना है, कोसेक और सेक की फॉर्म में लेके आना है। तो आप यहाँ 1 sin स्क्वायर A को 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर A लिख सकते हैं, और 1 अपॉन cos A है जो, इसे आप लिख सकते हैं सेक A, माइनस cos स्क्वायर A को आप 1 अपॉन सेक स्क्वायर A लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन A है जो,
इसको आप लिख सकते हैं कोसेक ए। नाउ यू गेट सेक ए, दिस इज इक्वल टू सेक ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो आप देखिए वी हैव सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग RHS नंबर 1। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी RHS नंबर 1 आ चुकी है। तो देयरफॉर वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS 1 इज इक्वल टू RHS 2। If 3 sides are there, then you will take one of the side as LHS and the other 2 sides we can take as RHS 1 and RHS 2। तो ये आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने दोनों पार्ट्स इसके राइट हैंड साइड के ऑब्टेन कर लिए हैं और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। If tan square theta is equal to 1 minus a square, prove that sec theta plus tan cube theta into cosec theta is equal to 2 minus a square power 3/2। तो ये स्टूडेंट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें हम देखिए कैसे ट्रिक अप्लाई करेंगे, समझिएगा। तो इट इज़ गिवन दैट tan square theta is equal to 1 minus a square. This is given. अब देखिए आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्व करनी है। sec theta plus tan cube theta into cosec theta. So let us consider this expression sec theta. This is the, we can say this is the LHS. Sec theta plus tan cube theta into cosec theta. Now let us change this in the here change this tan in terms of sin and cos। देखिए this is equal to sec theta plus tan cube theta को आप लिखेंगे sin cube theta upon cos cube theta into दिस कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए दिस इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस और साइन थीटा से आपने कैंसिल किया इसको साइन स्क्वायर टाइम। तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, इसको हमने ब्रेकअप किया है कॉस क्यूब थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। Now students, sec theta is common in these two terms. तो आप यहाँ लेंगे sec theta को common और 1 if you take this whole value as common तो 1 plus tan square theta. And students, you know the identity that 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So you can write this is equal to sec theta into sec square theta, which is equal to sec cube theta। और sec cube theta को आपको लिंक करना है tan स्क्वायर थीटा से। तो आपको यहाँ लाना होगा sec स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा होल पावर 3 अपॉन 2। यानी कि sec क्यूब थीटा को मैं जब आप ये जब sec स्क्वायर थीटा को लिखेंगे sec थीटा स्क्वायर और 2 पावर कैंसिल होगी, ये sec क्यूब थीटा के इक्वल। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि sec स्क्वायर थीटा को हम tan स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये स्टेप है हमारा। अब यहाँ हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2
and tan square theta value is here, it is given 1 minus a square. तो आप यहाँ लिखेंगे 1 plus 1 minus a square whole power 3 by 2, and 1 plus 1 minus a square means 2 minus a square whole power 3 by 2, और यही आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लानी थी. तो ये दिस इज इक्वल टू आपकी आ चुकी है राइट हैंड साइड. तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. अब एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट रिमेनिंग. तो अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15. इन द लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या प्रूव करना है? इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, प्रूव दैट एम स्क्वायर एन होल पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1. तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपको अगर ये प्रूव करना है कि एम स्क्वायर एन होल पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर 2/3 इक्वल टू 1, तो आपको पहले एम और एन की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. उसके बाद हम एम और एन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन की LHS में पुट कर देंगे. तो लेट अस फाइंड सिंप्लीफाई द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन. तो आप देखिए कि एम इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा. M is here, M is equal to cosec theta minus sin theta. अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin माइनस साइन थीटा अपॉन 1. LCM लेंगे इसका साइन थीटा 1 टाइम कैंसिल, तो 1 माइनस 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और आप लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और अपॉन में आपका साइन थीटा. तो ये तो हमारे एम की वैल्यू आपने सिंप्लीफाई की है. इन द सेम वे हम एन की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे. तो एन इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा. तो सेक को आप लिख सकते हैं 1/cos माइनस कॉस थीटा, और अब आप इसका LCM लेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड 1 टाइम, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा टाइम्स, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो नाउ वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ बोथ एम एंड एन. और अब एम और एन की ये वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे. तो लेट अस कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो LHS आप इसकी कंसीडर करेंगे विच इज एम स्क्वायर एन होल पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर होल पावर 2/3. तो देखिए इसकी इस साइड को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एम स्क्वायर पावर 2/3 का मीन्स एम पावर 4/3, 2 इंटू 2/3, एन पावर 2/3 प्लस यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो एम पावर 2/3 इंटू एन पावर 2 इंटू 2/3 इज 4/3. आपको पता है ये कि अगर आपके पास कोई भी इस फॉर्म में एक्सपोनेंट है ए बी पावर एम, तो आप लिख सकते हैं ए पावर एम इंटू बी पावर एम, और अगर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे. यू नो ए पावर एम होल पावर एन होता है, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को. तो ये इसमें यहाँ 2 इंटू 2 तो 4/3, और 1 इंटू 2/3 इज 2/3. इस टाइप से हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर ली. अब हम पुट कर देंगे एम और एन की वैल्यूज को. तो यहाँ एम की वैल्यू है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा और उस पे है होल पावर 4/3 इंटू n की वैल्यू आपकी है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा होल पावर 2/3 प्लस m, वैल्यू ऑफ m इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा होल पावर 2/3 इंटू वैल्यू ऑफ n इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा होल पावर 4/3। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये कॉस थीटा का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा मीन कॉस थीटा स्क्वायर, तो ये आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा पावर 8/3 अपॉन साइन थीटा पावर 4/3 इंटू साइन थीटा पावर 4/3 अपॉन कॉस थीटा पावर 2/3 प्लस कॉस थीटा पावर 4/3 अपॉन साइन थीटा पावर 2/3 इंटू साइन थीटा पावर 8/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स का अपॉन कॉस थीटा पावर 4/3। अब स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आप किसी भी वैल्यू को कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस m थीटा है, तो आप इस वैल्यू को कॉस थीटा पावर m भी लिख सकते हैं। तो उस तरीके से मैंने जो 8/3 थीटा आएगा उसको मैंने कॉस थीटा 8/3 किया है। अब आप देखिए यहाँ पे इससे ये कैंसिल और इस पावर से इस पावर से और ये पावर कैंसिल, आपके पास बचता है कॉस थीटा पावर 8/3 अपॉन कॉस थीटा पावर 2/3। अब ये सेम बेस है तो ये माइनस हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा पावर 8/3 माइनस 2/3 यहाँ प्लस, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा पावर 8/3 और साइन थीटा पावर 2/3 यानी कि माइनस कर सकते हैं। तो साइन थीटा पावर 8/3 माइनस 2/3, और आपको पता है कि 8/3 माइनस एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 2 6/3, तो 6/3 मीन्स कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर, और आपको पता है कॉस थीटा का स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आप कोई कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं या कॉस m थीटा लिख रहे हैं, कॉस रेज टू दी पावर m, कॉस थीटा रेज टू दी पावर m, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा रेज टू दी पावर m। कॉस m थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा रेज टू दी पावर m। तो इस तरह से आपका ये एक्सप्रेशन m स्क्वायर n पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर पावर 2/3 इक्वल टू 1 प्रूव हो गया है। इसकी राइट हैंड साइड आपकी आ गई है। तो इसके साथ इस क्वेश्चन के साथ आज के का ये पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो गया है।